اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوتیرس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. کہا دونوں ملکوں میں قیام امن کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. کسی بھی ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہے جس سے کشیدگی ختم ہو, سفارتکاری بڑھے اور امن قائم ہو. پاکستان اور بھارت سے جنگ کے دہانے سے لوٹنے کی اپیل کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونی گوتیرس نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ان حالات میں کسی بھی ایسی فوجی محاذ آرائی سے بچنا چاہیے جس کے قابو سے باہر ہو جانے کا خطرہ ہو. یہ خود کو روکنے اور جنگ کے دہانے سے واپس لوٹنے کا وقت ہے. پاکستان اور بھارت میں جنگ کی صورتحال ان کے لیے باعث تکلیف ہے. دونوں ملکوں کو پیغام دیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا فوجی حل کوئی حل نہیں ہوتا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایک بار پھر پہلگام حملے کی مذمت کی. کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا قابل پاکستان کی برطانیہ کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے لیے آئے برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو میں کہا کہ برطانیہ پاکستان اور بھارت سے اپنے دوستانہ سفارتی تعلقات کو استعمال شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے. پاکستان کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو. وزیر اعظم نے برطانوی ہائی کمشنر کو پہلگام واقعے کے بعد کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا. قومی اسمبلی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن, بھارتی جارحیت, پاکستان پر جھوٹے الزامات اور بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے خلاف متفقہ طور پر مذمت قرارداد منظور کر لی. قرارداد نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا پہلگام حملے سے تعلق جوڑ کی بھارتی کوشش مسترد کرتے ہیں. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی غیر قانونی اور بھارت کا اقدام جنگی عمل کے برابر ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو فروری 2019 جیسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی ثالثی کی کوششیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقات. صدر مملکت نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کوٹنگ ہے روف ماسٹر لگاؤ, گرمی بھول جاؤ. نے کہا کہ دہشت گرد گروہ بلوچ شناخت کے نام پر مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. دشمن عناصر صوبے میں خوف, عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ان کے مذموم مسائل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے. مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ عوام کی مکمل حمایت سے جاری رکھیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اطلاعات ہیں بھارت LOC کے طرف کسی بھی جگہ حملہ کر سکتا ہے. بھارت کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم پہلے کہ
चुके बैनुल-अक़वामी कमीशन बने जो पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे। तहकीकात से पता चल जाएगा कि भारत खुद मुलविस है या वहाँ का कोई ग्रुप। इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात। कहा दोनों मुमालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मलेशिया दोनों मुल्कों के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कशीदगी में जल्द कमी होगी। रूस का पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस पाक भारत सरहद पर बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है। रूस पाकिस्तान और भारत दोनों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान का जनूबी एशिया की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज रात मीडिया ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने बताया है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पेशगी काबिल एतमाद इतला होने की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से तैयार थी। पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने और भारत की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक उनके पास ये इत्तलात भी है कि भारतीय एयरफोर्स के उन तैयारों ने उस रात जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की थी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है हमारी रियासत पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं है, बल्कि तज्ज़ियाकारों की राय यही है कि पहलगाम वाक़या भारत की एक चाल हो सकती है, क्योंकि नई दिल्ली इस वाक़े से पहले ही सिफारती सतह पर पाकिस्तान से सिंध ताज़ मुआहदे में तब्दीलियां लाने का कह रहा है। बहुत सारी आलमी शख्सियात पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रही हैं। उनमें से कुछ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के जिम्मेदारान को पकड़ने में मदद दे, जिस पर उन्होंने कहा कि पहलगाम कंट्रोल लाइन से 230 किलोमीटर दूर है। बेशतर आलमी रहनुमा पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ से ही लाइल्म थे। पाकिस्तान ने आलमी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करेगा, तहम्मुल से काम लेगा और किसी सूरत पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का पूरी तरह दिफा करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से जमीन से जमीन पर मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद कहा। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हफ्ते को अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया। भारत
की आबी जारहियत बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारत ने दरियाई चिनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया। पानी की आमद से 5,300 क्यूसेक रह गई। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारत आबी जारहियत में मजीद आगे बढ़ते हुए किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाई झेलम में पानी का बहाव मजीद कम होने का खदशा है। इससे पहले 26 अप्रैल को भारत बगैर इत्तला दिए दरियाई झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोठी के मुकाम पर दरिया में पानी की सतह अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गई थी। दरियाए चनाब पर हेडमराला के मकाम पर पानी की सूरत हाल संगीन हो गई। दरियाए चनाब पर हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 4600 क्यूसेक है। हेडमराला के मकाम से पानी का अखराज 0 है। दरियाए चनाब में मौजूदा सीजन में पानी का बहाव 48,000 क्यूसेक से ज्यादा रहता है। दरियाए चनाब में हेडखानकी के मकाम पर पानी का बहाव 8300 क्यूसेक है। ऐसा भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की अचानक कमी पर इजहार तशवीश। अरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास के एलामिया के मुताबिक खरीफ सीजन से पहले 21% पानी की मजमूई किल्लत मुतवक्के है। पानी की किल्लत पंजाब और सिंध के दरमियान बराबर तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की बगलिहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। कहा, भारत की जानिब से पानी की बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वजीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा अल-सानी से दोहा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्जाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। मुलाकात में कतर के वजीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देने के लिए मजीद इकदाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इतवार के रोज मस्कत में ओमान के वजीर दाखिला से मुलाकात की थी और पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। के साथ बढ़ती कशीदगी खुसूसन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मैदान अमल में आ गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पसे पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल आसिम मुनीर ने भारत को 2 टोक पैगाम दिया। जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिमजोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले 2 कौमी नजरिए का भी जिक्र किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतारिक, हर सच, हर खबर और रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का ऐलान। कहा, गजा से फ़लस्तीनियों को उनकी हिफाजत के लिए हटाया जाएगा। इसराइली फौजी गजा में कार्रवाई करें फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा इसके बरक्स है। इसराइली फौज का जमीनी कार्रवाई वसी करने का फैसला हजारों रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया। सुबह से जारी बमबारी में अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हर किस्म की इमदाद 9 हफ्तों से बंद। इसराइल का बैन अल-अक़वामी इमदादी एजेंसियों की बजाय खुद इमदाद तरसील का मंसूबा। हमास की मुखालिफत। कहा, इमदाद को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने विफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मशावरत का पहला दौर था।
हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मशावरत जारी रखेगी। वक्त ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले करती जाएंगी। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जारियत से मुतालिक इक़दामात पर बात की गई। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो बड़े जोर से पार्लियामेंट आए थे। हालात संगीन हैं, लेकिन कौमी असम्बली में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हुकूमती बेंचों पर नशिस्तें खाली हैं। हुकूमत को चाहिए था कि ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते। ऐवान से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले ना वजीर आजम, ना वजीर खारिजा, ना कोई अहम वजीर ऐवान में मौजूद था। हम बांसुरी किसके सामने बजाते? दुश्मन के खिलाफ कौमी क़यादत एक पेश पर आ गई। मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। जंग छिड़ी तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए हम सब अपनी जानें निछावर करेंगे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भारत को 2 टोक पैगाम। बोले पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ की पेशकश से दुख हुआ। जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों बने। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। मोदी के होश तब ठिकाने आते हैं जब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के मौक़िफ़ को सराहा। कहा अक़वाम आलम को पैगाम गया कि हम सब वतन अजीज की सलामती के लिए एक ज़बान है। दुश्मन को हमारा पैगाम है, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है 5 अगस्त 2019 को भारत ने एकतरफा कार्रवाई से शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत का सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कोर्ट लखपत जेल से बयान में कहा कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नजरअंदाज करके भारत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने में हिचकिचाहट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एतराफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इसी हफ्ते फैसला सुनाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक सवाल पर बताया कि जिनाह हमले में गफलत बरतने पर 3 आला फौजी अफसर बगैर पेंशन रिटायर किए गए। जस्टिस नईम अफगान के सवाल पर बताया कि कोर कमांडर लाहौर भी बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को 39 हमले किए गए। ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ जब माजी में जुल्फिकार भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले ये सवाल ही नहीं है कि जुर्म हुआ या नहीं, हमें सिर्फ अपील के हक पर बात करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा जिना हाउस का गेट खुलांगा गया या अंदर से खोला गया। अगर अंदर से खोला गया तो ये मिली भगत का जुर्म बनता है। अटॉर्नी जनरल बोले इसका जवाब वो पूछ कर देंगे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस के 20 मुलजिमान को 6 माह कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का जमानत पर रिहा मुलजिमान को हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमान पर तरनौल रेलवे स्टेशन को आग लगाने और तोड़ फोड़ करने का इल्जाम था। मुलजिमान 2 साल से जमानतों पर थे। इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केस में 161 PTI रहनुमा और कारकुनों को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत के दौरान गिरफ्तारी से रोका। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एक साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हाल रुकावटों को दूर करना है। नई तरमीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हुकूक पर असरअंदाज नहीं होंगी। FPR के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा FPR अफसरान की बिला वजह हरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम मजीद सहल बनाया गया है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी अंडर इनवॉइसिंग के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर इक़दाम पेश करने की हिदायत।
वसूलियां बेहतर बनाने के लिए FPR ऑर्डिनेंस के अहम निकात सामने आ गए। FPR के जराये के मुताबिक चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। अस्पताल, तालीमी इदारों और सर्विस सेक्टर में भी तैनाती हो सकेगी। कोर्ट फैसले की मौजूदगी पर बिला नोटिस बैंक से टैक्स रकम काटी जा सकेगी। FED से बचने के लिए जाली बारकोड, लेबल या स्टैंप मुजरमाना अमल करार। FPR दीगर सूबाई या विफाकी अफसरान को चेकिंग, जब्ती या मुआयनों जैसा इख्तियार दे सकता है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल हो चुका है। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MNA पीपुल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर सवालात भेज दिए। खेल के दौरान गंदम के ड्रम में छुपी 4 बहनों समेत 6 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक। बच्चियों की उम्र 1 साल से 7 साल के दरमियान थी। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पेश आए वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, मुकम्मल छानबीन का हुक्म। बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि गंदम रखने वाला ड्रम साफ करने के बाद वो घर से बाहर चले गए थे। बच्चियां खेल के दौरान उसके अंदर चले गई और दम घुटने से जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक भारत से वापस आए मरीजों के ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अरकान पंजाब असम्बली सरदार आसिम शेर और खुर्रम खान बिर की भी मुलाकात। स्पीकर की वज़ीर आला को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनाने को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। आज तीसरा दिन है, मेरी बच्ची रो रही है, उसने दूध नहीं पिया, बीमार है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, परेशानी हो गई है। राजौरी की मासूम आयजा मामा पुकार कर हल्कान गोद खाली होने पर मां भी बेकरार। मोदी सरकार की वीजा मनसूखी की पॉलिसी ने खानदान जुदा कर दिए। 2 साल की आयजा मां से बिछड़कर सदमे से बीमार पड़ गई। कश्मीरी खानदान पाकिस्तानी बहू की जबरी बेदखली पर परेशान, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। अमरीकी नशियाती इदारे के सहाफी निक रॉबर्टसन का LOC के सरजीवार गांव का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक एनकाउंटर के शोहदा मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के सोगवारान और एनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए। लवाहिकीन ने भारतीय फौज के मजालिम से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल 2025 को आजाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत की जाहिरियत और इश्तियाल अंगेजी पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते के लिए नुकसानदेह है। सदर ने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम और पार्टी वर्कर्स के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की बेवा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के लाल किले का कब्जा मांग लिया। अदालत ने कहा कि अगर लाल किला दे दिया तो फिर